یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو عالم میں برزخ کے عذاب میں مبتلا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ٹال کے معزز ناظرین، آج کی پراسرار اور نصیحت و بری کہانی کا نام ہے بھیانک عذاب۔ دسمبر کی سرد شام تھی اور میں اپنے ہسپتال میں بیٹھا مریضوں کا چیک اپ کر رہا تھا۔ اس دن سردی کی شدت میں کافی اضافہ ہو رہا تھا، اسی وجہ سے مریضوں کی تعداد معمول سے کچھ کم تھی۔ میرا نام ڈاکٹر الطاف ہے۔ ان دنوں میری عمر 33 سال تھی اور شہر کا ایک معروف آرتھوپیدک ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے دور دراز علاقوں سے مریض میرے پاس آتے تھے۔ اللہ کی خاص کرم نوازی سے میری پریکٹس بہت اچھی چل رہی تھی۔ سردی کی شدت اور مریضوں کی کمی کے باعث اس شام میں نے آرام کرنے کا سوچا اور اپنے اسسٹنٹ سے کہا، ارشد، میں اوپر اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنا چاہتا ہوں، تم سنبھال لینا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو تو مجھے بلا لینا۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک مریض کی آمد ہوئی جو بیساکھیوں کے سہارے بہت مشکل اور تکلیف سے چل کر آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ چند دیگر افراد بھی تھے جو اسے سہارا دے رہے تھے۔ لباس اور شکل و صورت سے وہ کسی معزز اور امیر گھرانے کے لگتے تھے۔ خیر، میں نے مریض کو ہمدردی سے میز پر لٹا کر اس کا معائنہ شروع کیا۔ دراصل اس کی ٹانگوں میں مسئلہ تھا۔ میں نے کپڑے اٹھا کر اس کی ٹانگیں دیکھی تو حیران رہ گیا۔ دونوں ٹانگیں مکمل طور پر جل چکی تھی اور ان میں زخم تھے، ان سے پیپ بہہ رہی تھی۔ بیچارہ مریض درد سے تڑپ رہا تھا۔ پوچھنے پہ معلوم ہوا کہ ایک پانی کے تالاب میں سے کسی موذی جانور نے اسے کاٹا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا مرض پہلی بار دیکھا تھا۔ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیت اور اس کی پرانی میڈیکل ہسٹری سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس بیماری کا واحد حل دونوں ٹانگیں کاٹ دینا ہی ہے۔ بصورت دیگر انفیکشن کا جسم کے بالائی اعضاء تک پہنچنا یقینی ہے، جس کا انجام موت ہے۔ میں نے ان لوگوں کو کھل کر صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ مریض، جس کا نام خالد تھا، مجھ سے گویا ہوا، ڈاکٹر صاحب، میرا تعلق بہت امیر فیملی سے ہے۔ میں نے اپنے علاج کے لیے ہر ممکن کوشش کی، پیسہ پانی کی طرح بہایا، اور پھر آپ کی شہرت سن کر میں بڑی امید سے یہاں آیا ہوں۔ میں آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ فیس دوں گا۔ خدا کے لیے میرا علاج کریں۔ میں کسی صورت اپنی ٹانگوں سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ اگر ایک ٹانگ کا مسئلہ ہوتا تو بات اور تھی۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں جانتا تھا کہ اس کا علاج ممکن نہیں، اسی لیے میں اس کا پیسہ ضائع کروانا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ لوگ کسی صورت نہیں مانے اور کچھ VIPs کی سفارشیں کروائی، جس کی وجہ سے بحالت مجبوری مجھے خالد کو ایک مخصوص کمرے میں داخل کرنا پڑا۔ میں نے اس کا علاج شروع کر دیا تاکہ کم از کم اس کی تکلیف کی شدت تو کم رہے۔ اس کا آپریشن بھی ممکن نہ تھا، وہ ہر وقت درد سے تڑپتا رہتا۔ اعلیٰ اور جدید میڈیسن بھی فیل ہو رہی تھی۔ دیگر مریض بھی خالد کی چیخو پکار سے پریشان ہو رہے تھے، مگر میں مجبور تھا۔ ان دنوں میرے دل میں بارہا خیال آتا کہ آخر ایسا کون سا موذی اور خطرناک جانور ہے جس نے خالد کی یہ حالت کر دی۔ اگر زہر پھیلنے کا معاملہ ہوتا تو ٹانگوں کے علاوہ دیگر جسمانی اعضاء متاثر کیوں نہیں ہوئے؟ بہرحال میں نے ان کے علاج کے لیے دیگر معروف اور سینئر ترین ڈاکٹر سے بھی مشاورت کی، مگر کوئی حل نہ نکل سکا۔ روز بروز اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، انفیکشن بڑھ رہا تھا، مگر خالد میری بات ماننے سے مسلسل انکار کر رہا تھا۔ اس ایک مریض کی وجہ سے میری زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ پھر میں نے اسے پیار اور ہمدردی سے قائل کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ بھائی، آپ کی بیماری کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تمام سینئر ڈاکٹر حیران ہیں، کیونکہ ایسا کیس پہلے کبھی رپورٹ نہیں ہوا۔ ایکسیڈنٹ اور گولی لگنا تو معمول کی بات ہے، مگر تمہارا کیس منفرد ہے۔ لہٰذا اگر مزید جینا چاہتے ہو تو میری بات مان لو۔ اگر خدا نہ خواستہ تم مر گئے تو یہ موت تمہاری خودکشی کے مترادف ہوگی۔ میری باتیں سن کر وہ گہری سوچ میں پڑ گیا، پھر قدر توقف کے بعد بولا، ڈاکٹر صاحب، دنیا کے رنگ نرالے ہیں، لوگ بہت باتیں بناتے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں اجیرن بنا دیتے ہیں، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ میری موت قریب ہے، اور اب میں آپ کو ایک ایسا سچ بتاتا ہوں جسے سن کر آپ یقیناً حیران ہو جائیں گے۔ بچپن ہی سے مجھے جنگلات، محلات، پرانی عمارات اور قلعے دیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ میرا تعلق جاگیردار گھرانے سے ہے، مگر میں اپنی شوق کی تکمیل کے لیے محکمہ آثار قدیمہ بھی بھرتی ہو گیا، جس کی وجہ سے مجھے مختلف مقامات دیکھنے اور مختلف پروجیکٹس پر کام کرنے کے بے حد مواقع ملنے لگے۔ ایک بار 7 افراد پر مشتمل ہماری ٹیم کو ایک اسپیشل اسائنمنٹ کے سلسلے میں دور دراز علاقے میں جانا پڑا، اور ہم ایک لمبے اور خطرناک سفر کے بعد ایک ویران سے علاقے میں پہنچ گئے۔
यही हमारी मतलूबा जगह थी। हुकूमत की जानिब से हमें हुक्मनामा मिला कि इस जगह ज़रूर कोई अहम चीज़ दफन है, लिहाजा इस पर फौरी काम शुरू किया जाए। गर्मी का मौसम था और इंतहाई थका देने वाले सफ़र की वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई। हमें कोई मुनासिब जगह नहीं मिल रही थी। आबादी से बहुत दूर होने की वजह से वहाँ दरख्त बहुत कम थे, इसलिए वहाँ मौजूद कदरे बड़े और बहुत पुराने कब्रिस्तान को ही हमने गनीमत समझा। क्योंकि वहाँ पुराने और सायादार दरख्त मौजूद थे, हमने अपना सारा सामान एक बड़े और सायादार दरख्त के नीचे रखा जो कब्रिस्तान के एन वस्त में मौजूद था। हमारे ऑफिसर ने जल्द काम का सोचा और सबको थोड़ा आराम करने के बाद तैयार होने को कहा। मेरी तबीयत खराब थी, पूरा जिस्म दर्द महसूस कर रहा था, जैसे हल्का हल्का बुखार हो, इसलिए मैंने इनसे कहा, आप चलिए, मैं थोड़ा मजीद आराम करके आपके पीछे आ रहा हूँ। वो चले गए। फिर मैंने एक कपड़ा दरख्त के नीचे बिछाया और इस पर लेट गया। अलबत्ता एक लोहे की मजबूत सलाख बतौर हथियार अपने पास रख ली, ताकि खुदा न खास्ता कोई जंगली जानवर वगैरह हमला कर दे तो इससे बचाव किया जा सके। ठंडी हवा की वजह से जल्द ही मैं नींद की आगोश में चला गया। थोड़ी ही देर गुजरने के बाद अचानक किसी की मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर गया, मैं मर गया ऐसी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई इंतहाई तकलीफ में मदद के लिए पुकार रहा हो। फिर जल्द ही ये आवाज़ें आना बंद हो गई। मैंने इर्द गिर्द अच्छी तरह देखा, मगर वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, इसलिए मैंने इस बात को अपना वहम समझकर जहन से झटक दिया और सोने की कोशिश करने लगा। तकरीबन 5 मिनट के बाद फिर वही मर्दाना आवाज़ें आने लगी, बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर गया, मैं बर्बाद हो गया। इस बार आवाज़ों की शिद्दत में इजाफा हो चुका था और पुकारने वाले की आवाज़ों में बेहद कर्ब, तकलीफ और बेबसी का इजहार वाज़ा था। इस बार मैंने इसकी मदद करने का इरादा किया और आवाज़ों की जानिब बढ़ने लगा, जो कब्रिस्तान के शुमाली इलाके की तरफ से आ रही थी। कब्रिस्तान में घास और दीगर झाड़ियाँ वगैरह काफ़ी बढ़ी हुई थी। मैंने घड़ी पर टाइम देखा तो दोपहर के 11:15 बज रहे थे। हर तरफ खामोशी और हू का आलम था। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, आवाज़ें भी बुलंद और वाज़ा सुनाई दे रही थी। अब चीखों के साथ साथ किसी के मारने और गुस्से से कुछ कहने की आवाज़ें भी आने लगी, जो मेरी समझ से बाहर थी। गौर करने से मालूम हुआ कि ये भयानक आवाज़ें एक पुरानी कब्र से आ रही हैं। एक बार तो खौफ से मेरा जिस्म लरज़ उठा, मगर मैंने हिम्मत करके देखा तो मिट्टी कब्र से तकरीबन उतर चुकी थी। मैंने जुर्रात से काम लेते हुए कब्र खोदी। ना जाने इतनी हिम्मत मुझ में इस वक्त कैसे आ गई। खैर, कब्र का अंदरूनी मंजर देखकर मेरे औसान खता हो गए। कब्र के अंदर एक मुर्दा बगैर कफन के लेटा हुआ था। जगह जगह से इसका जिस्म फटा हुआ था, कहीं कहीं गोश्त और ज्यादातर हड्डियां नजर आ रही थी। अलबत्ता इसका जिस्म पूरा था और एक बड़ा सा असदा इसकी गर्दन के गिर्द लिपटा हुआ था और वो बार बार मुर्दे के दोनों कंधे और गर्दन पर डस रहा था। जबकि एक काले रंग का खौफनाक असदा जो मुर्दे के पेट के अंदर मौजूद था, वो मुंह बाहर निकालकर इसके पेट और टांगों पर डस रहा था। लेकिन सबसे खतरनाक चीज जो मैंने देखी वो एक चूहे नुमा जानवर था जो मुर्दे की छाती पर बैठा हुआ था, जिसका साइज खरगोश जितना था और वो इसकी पेशानी और दिल पर अपने नोकीले दांतों से मुसलसल हमले कर रहा था। वो जैसे ही हमला करता, मुर्दा शिद्दत तकलीफ से तड़पकर 1 फुट ऊंचा उछलता और फिर जमीन में धंस जाता। नेज़ इसके पूरे जिस्म पर आग लग जाती और इसकी दिल खराश चीखों पुकार से माहौल इंतहाई भयानक हो जाता। और तो और बेशुमार अजीबोगरीब कीड़े अलग से इसके जिस्म को खा रहे थे और ये सारा अमल मुसलसल और बगैर किसी वक्फे से जारी था। मैं वो हैरतनाक और नाकाबिल फरामोश मंजर देखकर फौरन वहां से भाग जाना चाहता था, मगर न जाने क्यों मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद बारिश की वजह से कब्र खराब हो गई है और कब्रिस्तान और जंगल के कीड़े और जानवर कब्र में दाखिल होकर मुर्दे को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। लिहाजा मैंने मुर्दे को इन जानवरों से छुड़ाने का फैसला किया। इस वक्त ये बात खास तौर पर मेरे जहन से मुकम्मल फरामोश हो गई थी कि अगर वाकई जानवर बाहर से कब्र में दाखिल हुए हैं तो मरने के बाद मुर्दा चीखें और आवाज़ें कैसे निकाल सकता है। खैर, पहले तो मैंने इन जानवरों को मुख्तलिफ तरीकों से डराया धमकाया, मगर वो टस से मस ना हुए। फिर मैंने लोहे की सलाख से इन्हें डराया, मगर ये हरबा भी नाकाम रहा। बाज़ मैंने गुस्से में आकर चूहे नुमा जानवर को सलाख से मारने के लिए इसे हवा में बुलंद किया तो इसने तेज और इंतहाई सुर्ख आंखों से मुझे घूरा। वो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था। फिर वो मुर्दे को छोड़कर मेरी जानिब बढ़ा। अब मेरे पास वहां से भाग जाने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था।
लिहाजा सलाख हाथ में पकड़े मैं तेजी से दौड़ने लगा। ऊंची नीची कब्रों और घास वगैरह की वजह से मेरे लिए दौड़ना इंतहाई मुश्किल हो रहा था। भागते भागते मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो जानवर मुसलसल मेरा पीछा कर रहा था। अलबत्ता खुशकिस्मती से इसकी रफ्तार काफी कम थी। अचानक एक कब्र से ठोकर लगकर मैं मुंह के बल गिरा और सलाख भी मेरे हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। पीछे देखा तो वो मुसलसल मेरा ताक़ुब कर रहा था। मैंने जल्दी से सलाख उठाना चाही और घास में हाथ मारने लगा कि अचानक एक बारीक और इंतहाई गर्म सांप मेरे हाथ में आ गया। मैं मजीद खौफजदा हो गया और इसे फौरन फेंक कर भाग खड़ा हुआ। मैं मदद के लिए मुसलसल अपने साथियों को पुकार रहा था। मैंने इस वक्त सोचा कि शायद मेरी मौत का वक्त आन पहुंचा है। जिंदगी हर किसी को प्यारी होती है, इसलिए मैं मुसलसल दौड़ता रहा। कब्रिस्तान से बाहर आकर भी इसने मेरा पीछा न छोड़ा। मुझे अपनी मौत यकीनी नजर आने लगी क्योंकि गर्मी की शिद्दत की वजह से मेरा सांस जैसे रुक रहा था, हलक खुश्क हो रहा था और अब मजीद जद्दोजहद करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। कोई रास्ता ना पाकर मैंने वहां मौजूद पानी के बड़े तालाब में छलांग लगा दी जो खिलाफ तौक़ा काफी गहरा था। मुझे नहीं मालूम कि मैंने पानी में क्यों छलांग लगाई। बस मौत से बचने के लिए सब कुछ गैर इरादी तौर पर मैं कर रहा था कि शायद वो जानवर पानी में दाखिल ना हो, मगर मेरा यह ख्याल भी गलत साबित हुआ और वो तालाब में भी दाखिल हो गया और मेरी जानिब बढ़ने लगा। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था, मगर मैं फिर भी ऊंची आवाज में मदद के लिए अपने साथियों को पुकारने में मसरूफ था। फिर मैंने आखिरी बार तालाब के दूसरे किनारे से बाहर निकलने की कोशिश की और खुशी की बात यह हुई कि मेरे साथी भी दौड़ते हुए तालाब के किनारे पहुंच गए। मैंने जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश की। मैं आधा बाहर निकल गया, अलबत्ता टांगे पानी में मौजूद झाड़ियों में फंस गई। फिर इस चूहेनुमा चीज ने अपने आखिरी हरबे की सूरत में अपने मुंह से थूकनुमा गहरे सुर्ख रंग का पानी तालाब में छोड़ा, जिससे फौरन ही सारा पानी बहुत गर्म और तेजाब की मानंद हो गया। मुझे लगा जैसे मेरी टांगे आग के तंदूर में मौजूद हो। मेरे साथियों ने पूरी कुव्वत से मुझे बाहर निकाला, मगर अब देर हो चुकी थी। मेरी टांगे झुलस चुकी थी। दर्द और जलन से मेरा बुरा हाल था। मैं तड़प रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आई कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है, क्योंकि जानवर भी गायब हो चुका था। दर्द की शिद्दत से अब मैं बेहोश हो गया। फिर मेरी आंख अस्पताल में खुली। मैंने ये वाकया किसी को नहीं सुनाया क्योंकि मुझे खदशा था कि कहीं लोग मुझे इस वाकये से मंसूब करके इंतहाई गुनाहगार साबित करके मेरी जिंदगी अजीरन ना बना दें। इसीलिए मैंने असल वाकया किसी को नहीं बताया। अपनी रवादार सुनाकर मजीद इस शख्स ने मुझसे बेहद अदब और एतमाद से दरख्वास्त की कि यह बात किसी और से शेयर ना कीजिएगा। अगर दुनिया को इबरत के लिए बताना ज़रूरी हुआ तो मेरा नाम नहीं बताइएगा। मैंने इसकी बात सुन के हाँ में सर हिला दिया। इसकी बात मुकम्मल होने के बाद मैं इस मसले को किसी हद तक समझ चुका था और मैंने फैसला किया कि अपने पीर व मुर्शिद सैयद नादिर शाह साहब से रब्ता करके एक आखिरी कोशिश कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि खालिद का कोई रूहानी इलाज मुमकिन हो सके। फिर मैंने शाह साहब को अस्पताल आने की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। अस्पताल आकर शाह साहब की मैंने खालिद से मुलाकात करवाई और शाह साहब को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। खालिद को मैं पहले ही एतमाद में ले चुका था। पूरी तफसील जानने के बाद शाह साहब बोले, डॉक्टर अल्ताफ, मुझे एक खास रूहानी अमल करना होगा और इसके लिए एक कमरा और कुछ ज़रूरी सामान दरकार है। इंशाल्लाह एक रात के अमल से ही इस बीमारी के बारे में इल्म हो जाएगा। इनके कहने के मुताबिक मखसूस कमरा और बकिया सामान मुहैया कर दिया गया। फिर पूरी रात उन्होंने अमल खास किया और अगले दिन हमें ऐसी बात बताई जो ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए बाइज़ इबरत है। उन्होंने सबकी मौजूदगी में हमें बताया कि खालिद एक अच्छा और नेक इंसान है और जो बीमारी इसे लगी है ये कोई सज़ा नहीं बल्कि दुनिया के लिए इबरत है। बात दरअसल ये है कि खालिद को जिस जानवर की वजह से इन्फेक्शन हुआ है इसका ताल्लुक आलम बरज़ख से है, ना कि दुनिया से। इसीलिए इसका इलाज इस दुनिया के किसी इंसान के पास नहीं, और जिस मुर्दे की कब्र को इसने देखा था इसे आलम बरज़ख के अजाबों में से कोई अजाब हो रहा था। अगर इसने इन जानवरों को देख भी लिया था तो इसे इन्हें हरगिज छेड़ना नहीं चाहिए था, और इसने तो इनके काम में मुदाखलत की। इसे तो फौरन वहां से दूर हो जाना चाहिए था। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि वीरानों और कब्रिस्तानों में अकेले सफर नहीं करना चाहिए। और फिर खालिद को अपनी तरफ मतवज्जा करके प्यार और हमदर्दी से कहा, बेटा खालिद, मैं अल्लाह ताला के फजल व करम और इसके अता करदा इल्म से इस दुनिया के अमराज का रूहानी इलाज कर सकता हूँ, मगर आलम बरज़ख से लगी किसी बीमारी का मेरे पास तो क्या किसी के पास कोई इलाज नहीं। लिहाजा तुम्हें टांगे कटवाना पड़ेंगी। अगर तुम इसी हालत में मर गए तो यह मौत खुदकशी कहलाएगी
اور خدا نہ خاصہ تمہیں بھی عالم برزخ میں عذاب ہو سکتا ہے۔ شاہ صاحب کی باتیں سن کر خالد کا جسم خوف سے کانپ اٹھا اور اس نے دونوں ہاتھ اپنے کانوں کو لگا کر اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کی اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ اب وہ بہت مطمئن نظر آ رہا تھا۔ پھر اسی دن اس کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں اور حیران کن طور پر وہ دیگر مریضوں کی نسبت بہت جلد ٹھیک ہو گیا۔ بعد ازاں میری کوششوں سے اسے مصنوعی ٹانگیں لگا دی گئیں جس سے وہ جلد ہی نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہو گیا اور اس کے بعد اسے کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس واقعے کے بعد میرے دل میں پہلے سے زیادہ خوف خدا پیدا ہو گیا اور میں سوچنے لگا کہ ہر مسلمان نے بروز قیامت تک قبر میں رہنا ہے، پھر ہم کیوں عالم برزخ سے غافل ہیں؟ الحمدللہ میں تو عذاب قبر سے بچنے کے لیے دین اسلام کے اصولوں کے عین مطابق زندگی گزار رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام مسلمان بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر زندگی گزاریں گے اور عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ یہ تھی آج کی نصیحت بری اور پراسرار کہانی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ کسی اور کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔